Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome to this session, and I would have the pleasure to welcome Shreya Shriji, who has got rank 71 this year, and this was her second attempt. And I am keen to find out, her optional is economy and economics, I would say. And in economics, we all have been getting a lot of queries about how to go about this economics preparation. तो मैम आपसे एक बात तो पहले जानना होगा, इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग आएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आप जरूर बता दें, क्योंकि आपके बारे में पेपर्स में भी हमने काफी पढ़ लिया और काफी चीजें आई हैं, आपके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें, और आईआईटी तक का सफर भी रहा है आपका, उसके बाद आपने किस हिसाब से इस तैयारी को चालू किया, एक बार थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। So, family background mein, I come originally from Bihar, and my father is an ex-serviceman from the Indian Air Force and is currently serving as a manager in Allahabad Bank, which has now become Indian Bank. And my mother has been a teacher, but currently she is a stay-at-home mom, especially for my preparation. And coming to my educational background, due to my father's transfers, I have studied in Kendriya Vidyalaya Sangathan all across the standard from KV Singrauli. It is a place in Madhya Pradesh and is generally known for its coal mines. After this, I did my master's and undergrad both from IIT Kanpur in economics. And ever since, I graduated in 2020, and since then I've been preparing for the civil services exam. So that was a journey. I think शायद बहुत लोग को इंस्पायर करेगा ये। और जब आप घूम रहे थे और शायद पढ़ भी रहे थे, तो आपके दिमाग में आ चुका था क्या कि अब मुझे आईएएस का तैयारी करना है, या फिर ये किसी एक टाइम के बाद आया था? Sir, initially, this is a funny story, but when I chose economics at IITs, everyone was saying, no, आपको तो IAS ही बनना है, that's why you are choosing this stream. But I did not. I was strongly against becoming an IAS officer at that time. I was like, हो गया IIT करेंगे, we'll go into a job and everything like that. In my college years, I was more inclined towards research in PhD. And during my time, I had a research internship at the French embassy. And during my work there, it was on education and the level of educational inequality in India across genders, across regions. And at that point of time, I realized that more impact can be made when we are working on the ground level, in the field. And this is the service that provides that opportunity. And after that, I slowly convinced myself that I want to enter into this fray, and here I am today. Right. चूंकि देखिएगा, शायद रिजल्ट अब आया है, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, क्या आपको लग रहा था कि आपका 71st रैंक आ रहा है और अचानक से फिर रैंक दिया जाती है? What were you doing all these days after the interview? आप क्या कर रहे थे? So my interview was on 17th May. So I did not have a very long time सोचने के लिए. And in this duration, I had extremes of moods. Like someday I used to believe that definitely not just 70, I'll come in the top 20 or top 10. Those were some moments. And at the other times, which was the majority of the time, I was even afraid of making it into the list, whether or not my name will appear in this PDF. So there's a lot of uncertainty, and I think every aspirant faces that. I'm just one of them. So बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई हो, वाकई में बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी मेहनत रही है। प्रीलिम्स के बारे में कुछ चीजें आपसे जानना चाहेंगे, और शायद हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। अब तो चूंकि एक ही दिन बाकी, आप देखेंगे तो कल का एक दिन बाकी, और कल के दिन काफी दिमाग में पैनिक भी रहता है। कुछ लोग होते जो परेशान भी रहते हैं कि पता नहीं 5 को कैसा पेपर आएगा, नहीं आएगा। आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा शायद हुआ होगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, आप बताएंगे बेहतर। तो आप कैसे अपने आप को बैलेंस किए, और 5 तारीख को जाके बेहतरीन परफॉर्म करना था आपको, ये कैसे हुआ है मुमकिन, ताकि जो भी व्यूअर्स इसको देखें वो भी समझ सकें? सर, जैसे एंजाइटी बेसिकली तब होती है जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं और रिजल्ट की आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। एंड मेन आप एग्जाम से ज्यादा एग्जाम के कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस कर रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो लोग क्या बोलेंगे, मैं खुद को कैसे जवाब दूंगा, मैंने नौकरी नहीं की है। So many things. I did not sit for placements, so that was always a pressure that I lost an opportunity there. But exam के समय I tried to keep my mind busy.
तो इवन इफ आई डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग, मैं कोई ना कोई किताब लेके बैठ जाती थी. एंड में आई हैड सम स्पेसिफिक एरियाज जो लास्ट मिनट में मुझे रिवाइज करना है, मार्क देम, तो मैं वो पढ़ती रहती थी. एंड लाइक दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर ऑल द 24 आवर्स ऑफ द डे. उसके अलावा आई हैड अ neighbor. She was 1 year old at the time I was given prelims, तो मैं उसके साथ खेलने चले जाती थी. And playing with pets and little kids is a very good mood booster. बहुत बढ़िया सीख है शायद कि हम लोग शायद अपनी लाइफ में एग्जाम में ही ना खो जाएं, शायद उसके बाहर भी अगर चीजों से इंटरेक्ट करते हैं तो मूड शायद हम लोग का अच्छा रह सकता है. तो लास्ट दिन कुछ लोग जो अभी सुन रहे हो या बाद में सुनेंगे वो लोग याद रखें कि अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने के लिए आप एक्सटर्नल एक्टिविटीज भी कुछ कर सकते हैं. आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ने का बहुत जरूरत पड़ा ही नहीं होगा. हम तो ये सोच रहे हैं कब से कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बजट, इकोनॉमिक सर्वे का आपके कॉलम में कोई ऐसा जगह नहीं रहा होगा. आप शायद बहुत आराम से इसको कंफर्टेबली कर लेते होंगे. ऐसा है क्या? जी नहीं. जैसे हमारी जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की कॉलेज में, इट्स मोर ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. तो जो ओके. इकोनॉमिक्स का पेपर 1 आता है ऑप्शनल का, वो मेरे लिए कंफर्टेबल था रिलेटिवली, बिकॉज वो मैंने अपने कॉलेज की स्टडीज में कवर किया था. बट द पेपर 2 पोर्शन एज वेल एज जीएसटी में जो इकोनॉमी पूछी जाती है, उसके कंसेप्चुअल फाउंडेशन तो थे मेरे पास, बट दोज पोर्शंस आर आल्सो वेरी डायनामिक. So they were as much of a challenge to me as they are to other aspirants as well. मेरे पास जस्ट एडवांटेज था कि आई हैड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन माइंड, तो मुझे वो चीजें समझने में टाइम कम लगता था. एंड आई वाज एबल टू लाइक मेक इंटेलिजेंट गेसेस इफ आई एम गिवन अ टर्म. तो आई कैन थिंक ऑफ कि व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स, या इफ आई एम आस्क्ड कि what does this impact, how does this quantity impact another quantity, so I can easily guess, understand those parts, but otherwise it's similar level of challenge. और एथिक्स के बारे में आप थोड़ा सा आज मंत्र दे दें. एथिक्स में अगर मान लीजिए समय देके, स्ट्रैटेजी देके कुछ किया जाए, some sort of parameters that you would want to give to the viewers कि हाँ इतना कर लेने से हो सकता है कि कॉन्फिडेंस भी आ जाए और हम लोग अच्छा स्कोर कर लें, क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है एथिक्स में. जी, I scored 120 out of 250 in ethics paper. So ethics में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस की तरफ देखें. जो सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया है, आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें rather than picking up a book. मतलब मार्केट में कई बुक्स आर वेरी पॉपुलर. आई रेड वन ऑफ दोस, बट मुझे वो यूजफुल नहीं लगी. The strategy that I followed was कि मैंने स्पेसिफिक जो सिलेबस में एक एक लाइन ऑफ टॉपिक दिया है उनको सर्च करती थी. उससे रिलेटेड जो मटेरियल अवेलेबल हुआ उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. एंड इन नोट्स को ऐसे टेबल के फॉर्म में विद हाइलाइट्स, विद इमेजेस, जो भी आप ग्राफ्स डायग्राम सोच सकते हैं वो करें. दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. सेकंड इज आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है. एथिक्स में सबसे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं. एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज. जैसे शुभम कुमार सर हैं लास्ट ईयर के AIR 1, उन्होंने अपने एथिक्स के डायग्राम्स काफी अच्छे डाले. एंड एग्जाम से एक रात पहले मैं उनके डायग्राम स्क्रॉल करके गई थी एंड मैंने उनके डायग्राम एग्जैक्ट कॉपी 3 या 4 अपने आंसर शीट्स में लिखे हैं. तो थैंक यू शुभम सर, आपकी हेल्प से भी थोड़े तो मार्क्स मेरे बढ़े ही हैं. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसे में भी आपका एक अच्छा रहा है पूरा मार्क्स. और ऐसे में अब जो डायनामिसिटी भी हो गई और लोग शायद अब फिलोसॉफिकल ऐसे देखे कुछ लोग घबरा भी जाते हैं. इसके लिए आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, एंड हाउ डू वी टैकल दीज थिंग्स? सर टैकल करने का तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं. डोंट लीव एनीथिंग टू चांस. फिलोसॉफिकल एसेज देख के लगभग हर कोई घबराया था, बट आई वाज रिलेटिवली काम बिकॉज प्रिपरेशन स्टेज में फिलोसॉफिकल एसेज वर माय स्ट्रेंथ. तो आप मुझे एनी डे फिलोसॉफिकल लिखने को दे दो तो आई विल एंजॉय द प्रोसेस. मेनली बिकॉज इसमें मतलब फिलोसॉफिकल में द फियर फैक्टर कम्स बिकॉज इसमें कोई स्टार्ट एंड एंड इज नॉट डिफाइंड. इट इज कम्प्लीटली अप टू यू. तो वी आर जनरली अफ्रेड कि इट इज कम्प्लीटली अप टू अस, तो हम इसमें फिल अप क्या करें. एंड आई सी इट इन द वे कि इट्स कम्प्लीटली अप टू मी. आई कैन यूज माई इमेजिनेशन, गो एनीवेयर. आई जस्ट हैव टू जस्टिफाई दैट वेयर आई एम गोइंग इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इसे मेंटेन करने के लिए व्हाट आई डिड वाज रीड द available essay copies of previous year toppers, especially those who had scored good marks and those who write in a very easy manner. So their method is
easy to emulate and मैंने उनके में से कुछ अच्छे anecdotes, quotations वगैरह अपनी एक लिस्ट बना के कॉपी करके रख ली थी, गुड एग्जाम्पल्स जैसे मैंने ऐसे और एथिक्स के लिए एक साथ प्रिपेयर किए थे, क्योंकि आप सेम एग्जाम्पल्स दोनों जगह यूज कर सकते हैं। कोटेशंस मैंने एक साथ प्रिपेयर किए थे, तो ऐसे और एथिक्स की प्रिपरेशन एक साथ आप करें एंड read the toppers copies, so I think that is the and ultimately आपको अपने वर्ड्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी का फॉलो करें बट अपना लिखें। राइट तो एकदम स्ट्रैटेजिक पॉइंट एकदम निकल के आया कि ये एसे का और एथिक्स का जो एक मेल है, अगर इसको देख के किया जाए, आई थिंक इट कैन बेनिफिट। और शायद हम लोग कई बार लाइक व्हाइल वी आल्सो टेक द सेशंस, वी रियली वांट द एस्पिरेंट्स की लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग बस चाहते हैं कि हम उसी दिन जाके लिख लें और शायद हम टॉप कर लेंगे, तो वो मुश्किल है। हो सकता है हो भी जाए, पर वो मुश्किल है, शायद वो पॉसिबिलिटी कम ही है। अभी तक जितना भी हम लोग देखे हैं, एंड वी हैव बीन स्पीकिंग अ लॉट, वी हैव सीन एवरीवन प्रैक्टिसिंग बिफोर हैंड, और सबका एक स्ट्रैटेजी था, प्रिपेयर करके रखा था। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए कुछ, एक तो बुक लिस्ट एक अगर आप बता सकें तो, दूसरा है कि क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद एक ऐसा एरिया रहता है जहां रिसोर्स क्रंच इज देयर। अगर आप और ऑप्शनल की बात करेंगे, जैसे अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें तो हमारे पास बहुत रिसोर्स है, बट इकोनॉमिक्स का जहां बात आता है थोड़ा रिसोर्स कम हो जाता है। हाउ डू यू हेल्प द एस्पिरेंट्स नाउ कि ये रिसोर्स में से निकाल लीजिए, कैसे करना है? नंबर वन तो ऐसा है कि आफ्टर द प्रीलिम्स इज ओवर, मैं मैंने नोट्स बनाए हैं, अपने जो मैंने पीवाईक्यूज के आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, आई विल बी शेयरिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल, पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। एंड सेकेंडली इज व्हाट आई डिड वाज अगेन फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपर्स, दे हैव बीन अ ह्यूज हेल्प। तो तेजस्वी राणा मैम है, अभिजीत सिन्हा सर हैं, कुमार अनुराग सर हैं और अभिमन्यु गहलोत सर हैं। इन 4 लोगों के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ब्लॉग्स आर वेरी यूजफुल, इनकी डिटेल्ड बुक लिस्ट है। अभिमन्यु गहलोत सर ने इनफैक्ट बुक से कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं ये तक मेंशन करके दिए हैं। तो आई यूज देयर ब्लॉग्स टू सॉर्ट आउट द बुक लिस्ट दैट आई एम यूजिंग ऑन, एंड केवल स्टैंडर्ड बुक्स, वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट मैंने यूज किए हैं। एंड उसके अलावा what I did was to make my notes and own words. ये तेजस्वी मैम और अभिजीत सर दोनों ने कहा है कि उनके सेकंड मेंस में उनके स्कोर्स इंप्रूव हुए significantly, and that was because they used their own notes and practiced the PYQs with their own hands rather than taking just looking at others answers. So I think economics optional में what helps the most is आप अपने हाथ से practice करके जाएं, because graphs बनाने की जरूरत पड़ती है and this टाइम क्रंच एज वेल, आपको काफी तेजी से लिखना होता है, तो अनलेस आपने ग्राफ्स अपने हाथ से नहीं बनाए हैं, डेफिनेशंस खुद से सोच के नहीं लिखते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको याद नहीं आएंगे। ये पेपर 1 की चीजें हैं। एंड पेपर 2 में आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय कुमार अनुराग सर। उनके काफी डिटेल्ड नोट्स हैं, अब चूंकि वो कुछ साल पुराने टॉपर हो गए हैं तो डेटा इज आउटडेटेड इन सम एस्पेक्ट्स। तो मैं ये करती थी कि उन्होंने जिन चीजों पे डेटा कलेक्ट किया है, मैं उन्हीं चीजों पे वापस से गूगल करके एज मच एज पॉसिबल डेटा अपडेट कर लेती थी। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिमेन्स द सेम, तो मेहनत आसान हो जाती है। एंड व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील व्हेन यू कैन क्लाइंब ऑन स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। राइट तो जो जैसे बोलते हैं कि रिसोर्सेज, जैसे बुक्स, अगर स्टैंडर्ड बुक्स का बात करें तो क्या बहुत ज्यादा बुक्स हैं कि लिमिटेड बुक्स हैं जिसमें हो जाता है काम? मैंने बहुत लिमिटेड बुक्स यूज की हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. आहूजा सर की बुक बोली जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रोयन की बुक है। आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भी ऐसे ही एक बुक हर एक के है। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आप शेयर कर सकें। एक बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए। और आपको जहाँ भी उसमें गैप्स लगे या आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपर्स के नोट्स हैं आप एक बार देख लीजिए कि उन्होंने किन चीजों पे किस तरह के नोट्स बनाए हैं, एंड देन आप उसका आइडिया लेके उसको मॉडल की तरह यूज करके अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो दैट कैन हेल्प एज वेल। आपका जब इंटरव्यू हुआ, चूंकि अब आपका शायद मई के एंड में हो रहा था, बहुत सारे रिएक्शंस पहले से आने लगते हैं कि ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। आपके साथ कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो कुछ किस्सा जो वहां पे हुआ हो, एंजॉय किया हो, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो आपके साथ इंटरव्यू में, ऐसे प्रश्न पे जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो, या ऐसा कुछ आपके सामने प्रश्न आया हो जो आपको काफी सरप्राइज किया हो? एनीथिंग ऑफ सच सॉर्ट हैपेंड? सर सरप्राइजिंग तो नहीं था, मैंने काफी मॉक इंटरव्यूज दिए थे एंड मेरे एक्सपेक्टेड लाइंस पे मेनली इंटरव्यू चला था। व्हाट वाज फन वाज इन द एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस, एंड आई आल्सो राइट पोएट्री।
इन हिंदी, तो मैंने अपनी एक पोएम उन्हें सुनाई थी एंड दे एंजॉयड दैट। ग्रेट, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेरी पॉजिटिव थिंग आल्सो, क्योंकि अब तुरंत उनको नंबर भी देना था, तो शायद उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा होगा। तो आई डू होप सो। खैर, अब तो मतलब चूंकि अब आप शायद उस पड़ाव को पार कर चुकी हैं, एंड आई थिंक सून यू विल ऑल बी गोइंग फॉर द ट्रेनिंग। कुछ अंतिम, कुछ आपके कुछ शब्द हों इस सेशन में, ताकि आप जो हमारे व्यूअर्स हों, एस्पिरेंट्स हों, उनको एक मोटिवेशन देख सकें, और कुछ चीजें आपकी तरफ से कुछ ऐड करना आप चाहें। सर, एक जो मूल मंत्र है जो आपको 5 जून को भी काम आएगा एंड हर दिन काम आएगा, दैट इज टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। डर लगता है, सबको लगता है एग्जाम से, बट जब आपको, खासतौर पे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं ना, तब आप आपकी प्रिपरेशन जो भी आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो रादर देन कि आप स्ट्रेस लें इस चीज का कि मैं ये नहीं पढ़ के आया या मुझे ये याद नहीं, आप वो सब छोड़िए। ना पास्ट का सोचिए ना फ्यूचर का सोचिए, केवल उन 2 घंटों में वो जो 100 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, केवल उनके बारे में सोचिए। और इसके अलावा ये कि कभी भी प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी भी डाउट आए तो हैव अ सपोर्ट सर्कल। आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, whoever feels कि whoever you feel जो कि आपके मूड को अच्छा कर सकते हैं, who provide you proper feedback और guidelines on how to proceed, उनसे बात करिए एंड नेवर shy away। unless आप अपने problems discuss नहीं करेंगे, how will you be able to solve this? राइट, और थोड़ा सा अगर एक दो आप लाइन कुछ बोले, लाइक इफ यू हैव यूज्ड सम टेस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, या कुछ भी आप किए हो, तो एक बार जरूर उसके बारे में भी बताएं। सर, मैंने एथिक्स और इसकी एथिक्स के कुछ सेशंस आतिशर लेते थे इस पे, हाँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने कुछ दिन वो फॉलो किया था। वो एकदम इनिशियल स्टेज में था, फर्स्ट अटेम्प्ट के समय, तो तब डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, देन वो मिस हो गया। एंड सेकेंड अटेम्प्ट के समय करंट अफेयर्स में डिसिप्लिन थोड़ा लाने के लिए कि मैं कवर कर लूँ डेली, तो आपकी एक आई थिंक 10 क्वेश्चंस की डेली मॉर्निंग में क्विज आती थी। तो अटेम्प्ट करी, ताकि दैट वाज अ डिसिप्लिन कि हाँ, आज के मैंने सीए पढ़ लिया एंड देन आज के मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। दिस इज समथिंग आई डिड, एंड अदरवाइज आफ्टर मॉक इंटरव्यूज, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैड टू एंड ऑफ माय प्रिपरेशन। चलिए, हम लोग का भी सौभाग्य है शायद कि कहीं ना कहीं हम लोग आपसे जुड़ सके, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू सर्व दिस कंट्री वेल, एंड उम्मीद है हम लोग की सारी दुआएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हो, देखिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन आज हम लोग के लिए आया है, और शायद जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत काम, यू कुड फील कि कितना काम से दिया है मैम ने पेपर, और कितने अच्छे से किया है। शायद एक कामनेस अगर हम अपने में भी ले आए, तो एक लाइफ को कैसे जीना है पेपर के साथ, वो भी सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.